لوگ میں بھی زیادہ لمبی رینج ہے. بات سمجھ آئی؟ لیکن شرط ہے کہ رینج ادھر جو ہو، اس کی بات نہیں. یہاں بیٹھا ہوا بھی رینج سے باہر ہوتا ہے اور لاکھ میل دور بیٹھا ہوا بھی رینج میں ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یقین کی باتیں بتاؤ، سمجھ لو. جہاں قدموں کے قریب بیٹھا ہوا رینج سے باہر ہوتا ہے جس کا یہ ادھر متوجہ نہیں، اور لاکھوں میل دور بیٹھا ہوا جو کنیکشن لگایا بیٹھا ہے نا وہ رینج میں ہے. ہمارے حضرت عبد الرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم فرمایا کرتے تھے فقیر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ مسکین مسجد نبوی میں بیٹھ کر توجہ ڈالتا ہے، لیکن ہزاروں میں سے چند ایک فقیروں کی ایسی توجہ ملتی ہے جو آگے کشش کرنے والے ہوتے ہیں، اکثر واقع نظر آتے ہیں. ہزاروں فقیروں میں سے چند ایک مخلوق لوگوں سے ہوتے ہیں جو رینج میں ہوتے ہیں، جن پر توجہ ہماری اثر کرتی ہے. اکثر غفلت میں پاتے ہیں، لوگ غافل ہوتے ہیں. اپنے شہر سے تمہیں روحانی تعلق ایسا جوڑا ہوا کہ لاکھوں میل دور بیٹھ کر تو رینج میں ہو، قلبی تعلق ایسا جڑا ہوا تو پھر ان کا میزائل خط وہاں سے کرے گا. اگر نفس والا بمباری کرنے آئے گا اس کو بھی تباہ کر دے گا، اگر شیطان والا بمباری کرنے آئے گا یہ میزائل اس کو بھی تباہ کر دے گا. آپ حضرات کو یاد ہوگا پچھلے سے پچھلے سال غالباً اجتماع کے اندر ایک بات سنائی تھی ایک اللہ والے کی. نام ان کا غالباً میرے دن کو پتا رحمہ اللہ علیہ تو ان بڑے قابلین میں سے اپنے وقت کے شیخ کامل ایک اللہ والے کی خدمت میں آیا. امام صاحب ماشاء اللہ دین کے بہت بڑے امام ہیں، اتنا بڑی آپ نے محنت کی، تعلیم تدریس کی، تحریر تقریر کے اندر بڑا مقام پایا آپ نے. یہ چاچی دنیا والی جو ہے نا اللہ والوں سے ملتے ہیں یہ بھی تھوڑی سی چلی جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے ہم تحریر تقریر تصنیف کے میدان کے آدمی ہیں، ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے. مولویوں کو بس یہی دھوکہ لے گیا. یاد رکھو مولویوں میرے بھائیوں، یہی دھوکہ ہمیں برباد کر دیا. ابھی کیا کریں؟ ڈیڑھ ان کی مسجد جس کو مل گئی وہ کہتا ہے میں نے پہاڑ ٹوٹ لیا، مسلح مل گیا، تدریس مل گئی، پھٹا مل گیا، اسی کا بس خوش ہے مولوی صاحب. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے مولوی صاحبان تم خوش رہو، ہم دین کے کسی ایک شعبے کو لے کر کامیاب ہو گئے، یہ تصوف تمہاری وراثت ہے. یہ تصوف دراصل علماء کی وراثت ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں. تم نے تصوف سے روزگردانی کر لی، منہ پھیر لیا، آسان چیزیں تجویز کر لی. 2 رکعتیں پڑھائیں، السلام علیکم السلام کیا، جا کے بستر پہ سو گئے، اسلام کا پرچم تم نے لہرا دیا اور خدا کو احسان لگا دیا کہ 2 فاطمے پڑھا کے آ گیا. یہ تصور تمہاری وراثت ہے. جب سے تم نے اسے روزگردانی کی جوہلا نے آ کر یہ تصور کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. نتیجہ یہ نکلا ان جوہلا نے ہمارا دین بھی لوٹا، دنیا بھی لوٹی، ایمان بھی لوٹا، غیرت بھی لوٹی، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. کل اللہ کی بارگاہ میں یہ تصور بیچارہ مظلوم بن کر تمہارا گریبان پکڑے گا، گریبان کیسے چھڑاؤ گے؟ عرض کرے گا مولا یہ علماء کی جماعت دانا اور بینا جماعت تھی، یہ میری حقیقت کو جاننے سمجھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کیوں مجھ سے روزگردانی کی؟ یاد رکھو میرے بھائی علماء حضرات، تمہارا گریبان ٹوٹ نہیں سکے گا، کیسے چھڑاؤ گے؟ تمہارا حق بنتا ہے کہ اہل اللہ کے دودھ میں آؤ، یہ تصور کی دولت حاصل کرو، اس نور سے اپنے سینوں کو منور کرو اور مخلوق کو خالق سے جوڑو، ورنہ کل گریبان تمہارا مشکل ہو جائے گا. ہم نے بھی وہی حضور پیش کیا کہ کہاں حق مل رہا ہے ہمارے پاس کیا. جب نشانے پہ لگا تو تھوڑی سی دقت آئی، کہنے کا اچھا سب طریقہ بتلا دو، جب ٹائم مل جایا کرے گا تو پھر کر لیا کروں گا. ہاں بھائی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ طریقہ سیکھ لو، جب ٹائم مل جایا کرے تو تھوڑا سا کر لیا کرو. حضرت نے بیٹھ کرنا صاحب بتلایا، ذکر اللہ کا طریقہ بتلایا، توجہ فرمائی، مانڈے میں تھوڑا سا دیا، میرے اللہ اللہ کرتے رہے چلے گئے. لگتا رہا قیا میں اجرا پہنچا، شیطان پہنچ گیا. اللہ وحدہ لا شریک نہیں. علم کے سمندر کے بندے نے ایک دلیل پیش کی اللہ وحدہ لا شریک، شیطان نے رد کر دی. دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے رد کر دی. تیسری دلیل پیش کی، شیطان نے رد کر دی. 360 دلیلیں اللہ کی وحدانیت پیش کی سکرات کے وقت میں.
शैतान सबको रद्द करता था, करीब था कि बेईमान करके मारता। ये मनकर अल्लाह पाक ने उन अल्लाह वालों पर अयान कर दिया जिनकी सोबत की घड़ी नसीब हुई। वहां से मीज़ाइल खैर किया, बमबारी कर रहा था ना, इधर बेताब होकर उठे, शागिर्द ने फरमाया जल्दी कर लोटा पानी का लिया, पानी का लेके आया, वुजू फरमाने लगे। वुजू के दौरान चुल्लू पानी का भरकर जोर से दीवार पे मारा और फरमाया वहां से, क्यों इस बदबख्त को दलीलें दे रहा है, कह दे इसको कि मैं बगैर दलील के खुदा को वाहिद ला शरीक मानता हूं। वहां से मेरे खैर हुआ, अल्लाह ने अपने करम फजल से पहुंचा दिया। क्यों करो, अरे मेरे शेख कहाँ से आया, इधर देखा उधर देखा, कहीं नजर नहीं आया, समझ गया कि मेरे रब की रहमत समझ के लगा है बदबख्त क्या मुझसे दलील पूछता है, मैं बगैर दलील के अल्लाह को वाहिद ला शरीक मानता हूँ। मिट्टी डालता हुआ था, कलमा पढ़कर दुनिया से उठ सके। कल दिनों के बाद मुलाकात हुई किसी मिलने वाले से, इजाजत कैसे गुजरी, कहने के यार वापिस सब कहते थे अल्लाह वाले कि यब जमाना सोहबत बारो दिया बेतरस अरे सब एक घड़ी किसी कामिल की सोहबत में बैठ जाना 100 साल की बेरिया इबादत से अफसर है। जिस इल्म में मुझे घमंड और नाज था वो तो मेरा सब छुट्टी हो गया था। 360 दलील तो मेरी दुश्मन ने सारी रद्द कर दी थी, बमबारी की जद हो चुकी थी। वही एक घड़ी उनकी सोहबत पर ईमान आई और अल्लाह ने खातिर पर ईमान यूं मीज़ाइल खैर करते हैं, लेकिन सब है कि नींद में हो। तब यही बड़ी बात है आजकल कि हम रेत से निकले हुए, रस्मी तौर पर हाथ में हाथ दे दिया फिर छुट्टी, फिर वही साल को तारे रहेंगे, अक्टूबर आएगा दूसरा जुम्मा जाएंगे तो खुसूसी दुआओं की दरखास्त पेश करके छुट्टी। जी अरे भाई 2 रातें हैं, कम से कम 2 रातें तो रह जाए, अल्लाह वाले आएंगे दुआएं कराएंगे, तो अगर मेरा पीछे प्रकाश कर दिया काम पड़ा बस खुसूसी दुआ मुझे याद रखना, अस्सलाम वालेकुम न जा रहा ये काम नहीं करेगा। तुम्हारा भी मेरे भाई कर रहा था जी। तो हम तशरीह करते हैं अल्लाह वालों पर, जब हम बताते हैं ना कि भाई ये नबी वाले लोग ऐसे होते हैं, जब ये कुरान छोड़कर बैठते हैं ना, महबूब इनको अपने पूर्व में बुला लेते हैं और इतना मुकर्रब कर लेते हैं, फतदल्ला वाली सिफत की नजर झलकी इनको नसीब होती है, महबूबों को मुकर्रब बना लेते हैं, कुर्ब नसीब हो जाता है। और कभी कभी अपने जल्दों से दीदार का भी शर्त महबूब उठते हैं तो फौरन ये चीख उठते हैं। और बिलखुसूस हमारे खुश्क मौलवी साहबान, कार नहीं मैं उनको खुश्क मौलवी साहबान कहूँगा, और कुरान की आयत लेकर आ गया सो भी जाहिल लोग मन घड़त बातें कर रहे हैं, ये कुरान के खिलाफ बात कर रहे हैं। कुरान कहता है ला तुद्रिकुल अब्सार वहुवा युद्रिकुल अब्सार, वो ऐसी जात है जिसको कोई नहीं देख सकती, कोई नहीं देख सकता, वो सबको देख सकता है। ये कहते हैं कि अल्लाह का दीदार नसीब होता है। मौलवी साहबान समझ गए होंगे एतराज, ये आयत लेकर मौलवी साहबान लड़ाई के लिए खड़े हो जाते हैं। कुरान की नफी, इतना जहालत की बातें, सूफिया मन घड़त बातें करते हैं। कुरान कहता है ला तुद्रिकुल अब्सार वहुवा युद्रिकुल अब्सार, उसको कोई नहीं देख सकता। ये कहते हैं कि अल्लाह के दीदार और जलवे नसीब होते हैं। कुरान की मुखालफत, ऐसा तल्सम होना नहीं चाहिए। ये जाहिल सूफियों में जाहिलाना बातें हम नहीं मानते। काश के अल्लाह पाक तुझे दीद बसीरत अता करता, किसी अल्लाह वाले की जूतियों में तुझे बैठना नसीब होता और कुरान समझने की तुझे तौफीक मिलती तो ये शैतान का धोखा न खाता। तवज्जो करें, अल्लाह पाक ने इंसान को 2 आंखें अता की। कितना भाई? 2 आंखें। एक है सर की आंखें, एक है सर की आंखें। इन सर की आंखों में जो अल्लाह ने दीद रखी है ना, इसका नाम है दीद बसवारा। इसका नाम क्या है? दीद बसवारा। और दूसरी आंखें अल्लाह पाक ने मोमिन के दिल में रखी है, और इन दिल की आंखों में जो अल्लाह ने दीद अता फरमाई है उस दीद का नाम है दीद बसीरत। इसका नाम क्या है? दीद बसीरत। ये दीद बसीरत इन सूफियों को मिली है या ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिली हुई थी? क्यों नहीं? कुरान से पूछे, कुरान क्या बतलाता है? अला
बस्तियवाती आना वमनित्तबानी। कुरान बतला रहा है मुझे भी अल्लाह पाक ने बसीरत के नूर से मुज़य्यन फरमाया है, और वमनित्तबानी क़यामत तक जो मेरी ताबेदारी करने वाले हक वाले होंगे उनको भी अल्लाह पाक नूर बसीरत अता फरमाएंगे। कुरान तस्दीक कर रहा जी। रहा ये मसला, आप कहेंगे यार उसके साथ हर दफा आते हैं, नहीं बातें ये पता नहीं कहाँ से निकाल के लाता है, मन गलत बातें सुना के मन परेशान करता है। हमने तो गौहर शाही के बड़े बड़े जेल के मॉडल बने हुए देखे हैं, उसमें तो कोई आंख नहीं लगी हुई दिल में, और बड़े बड़े डॉक्टरों की किताबें हमने देखी, जेल के बड़े बड़े नक्शे हमने देखे, वहाँ दिल में कहीं आंखें लगी हुई नहीं देखी, और ये कहता है कि दिल में आंखें होती हैं। तो भाई उसूल है कि जो मुल्क कोई मशीनरी ईजाद करता है ना, उसमें कोई फॉल्ट दूसरे मुल्क वालों को समझ ना आए तो मूजिद से राब्ता करते हैं कि बाबा तूने बनाई है, तू आके बता के इसमें क्या फॉल्ट बना हुआ है। उसका बनाने वाला खुद आके कल्ली खोल खोल के बता देता है कि इसमें ये फॉल्ट है और ये तरीके इस्लाह है। अब दिल के बनाने वाली जात से ना पूछें कि मौला तूने जो दिल को बनाया है, क्या तूने बनाते वक्त इसमें आंखें रखी हैं कि नहीं रखी? क्यों भाई? उससे नहीं पूछना चाहिए। जब उससे पूछते हैं तो उसका कुरान हमें बतलाता है फइन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फिस्सुदूर। ये बदबख्त मेरी जात को, मेरी शान को नहीं पहचान रहे, ये सर की आंखों से अंधे नहीं, सर की तो इतना मोटे मोटी आंखें इनमें मौजूद हैं, वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फिस्सुदूर, ये दिल की आंखों से अंधे हैं जो दिल के सिरों में खड़े हैं। वो दिल के बनाने वाला खुद बता रहा है कि मैंने दिल में आंखें रखी, और इन दिल की आंखों में जो अल्लाह ने नूर अता किया है ना, इसका नाम है नूरे बसीरत। मौलवी साहबान, शैतान का धोखा मत खाओ। कुरान नफी करता है अबसार की, ला तुदरिकुहुल अबसार, बसीरत की नफी नहीं करता। नहीं समझ आई? कुरान कहता है ला तुदरिकुहुल अबसार, इन आंखों से नहीं देख सकते। हमारी तो ये आंखें 6 नंबर के शीशे के बगैर काम नहीं करती, कैसे नजर आएगा जी? ये आंखें देखती हैं, ये महबूब के जज्बों को ये आंखें देखती हैं। कुरान बसीरत की नफी नहीं करता, बसारत की नफी करता है। धोखा नहीं खाना चाहिए। कुरान की आयत की आड़ में इतना बड़ी दौलत से महरूम नहीं होना चाहिए। कुरान अपनी जगह बरहक है। कुरान नफी करता है ला तुदरिकुल अबसार, सर की आंखों से नहीं देख सकते। ये तो नहीं कहता कि दिल की आंखों से नहीं देख सकते। महबूब के दिल की आंखों से देखे जाते हैं नूर बसीरत। क्यों? ये नूर बसीरत ऐसी चीज नहीं, इत्तकू बिफरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से डरो कि मोमिन सिर्फ ये दीदे बसारत से नहीं देखता, मोमिन तो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। इस दीदे बसीरत में अल्लाह का दिया हुआ नूर होता है। आज से 3 साल पहले सालाना इज्तिमा के मौके पर किसी दीद बसीरत के मौजूद पर बड़े वाक़यात सुनाए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला वाक़या भी सुनाया था। या सारियतल जबल, याद है ना? हमेशा इज्तिमा में रहने में फकीरों में याद होगा। हज़रत कुरैश रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी सुनाया था। पर भाजी में फकीर आते रहे, खरगोशे को गिद्दड़ खाते हुए इज्जत में इधर जवाब दे रहे थे। याद है जी? ये दीद बसीरत, ये बसीरत के साथ अल्लाह पाक फरमाते हैं। और ये दीद बसीरत वहां तक पहुंचती है जहां तक दूरबीनें नहीं पहुंच सकती। इनकी रेंज भी बहुत बड़ी लंबी है। ये दीद बसीरत की रेंज बहुत बड़ी लंबी है। ये मसला आप कहेंगे जी हमें तो जलवे नजर नहीं आते, कैसे नजर आए और क्यों नजर आए? तूने तो दीद बसीरत को सिरे से कोर कर रखा है। दिल की आंखों को रोशन करना तो बुझा, तूने तो दिल को ही मुर्दा कर रखा है। तुझे कैसे नजर आए? क्यों? रात दिन रहमान की नाफरमानी और शैतान की दावेदारी।
प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीकों की बगावत, रस्म रिवाज, जहालत के तौर तरीकों की ताबेदारी, न सूरत महबूब की सूरत के मुताबिक बनाई, न सीरत महबूब की सीरत के मुताबिक बनाई, रस्म रिवाज बिरादरी के तौर तरीकों में मस्त मगन है। तो फिर कहते हैं जी दीन बसीरत मेरी रोशन नहीं हुई, मुझे महबूब के जलवे नजर नहीं आते। कैसे नजर आए? रात दिन गुनाह कर 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 करके अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा एक गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता दिल पे लग जाता है। अगर सच्ची तौबा कर ले तो खुल जाता है, वरना दूसरा गुनाह कर ले तो दूसरा नुक्ता लग जाता है, तीसरा गुनाह कर ले तो तीसरा नुक्ता लग जाता है, हत्ता के कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हमारे पूरे आमाल बुरे कसब की नहुसत की वजह से दिल पे रान मैल कुचैल कदूरत चढ़ जाती है और नतीजा ये निकलता है सुम्मा कसद कुलूबुकुम मिन बअद ज़ालिका फहिय कल्हिजार। ये पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाता है और दिल हमारा मुर्दा हो जाता है। फकीरों को पूछते हैं, फकीरों बैत तो हो गए, आपको बताया था कि कम से कम 24 घंटों में 1 घंटा मुराकबा किया करो, मुराकबा हो गया ना। आज क्या करें, काम काज से फुर्सत नहीं मिलती, मुराकबा नहीं होता है। ना तेरे से तस्बीह हो, ना 1 घंटे का मुराकबा हो, न शेख की तालीम पर तू तवज्जो दे, न शेख की तरबियत की तरफ तेरा ध्यान हो, और खिला लिए बैठा है जी 20 साल हो गए मुझे बैठ हुए, मुझे तो कोई जलवे नजर नहीं आते। कहां से जलवे नजर आए? अरे भोला तूने दिल को तो कर रखा है मुर्दा, तेरा दिल तो सियाही कदूरत की वजह से पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका, दीद बसीरत तो तेरी अंधी हो चुकी, कहां से तुझे जलवे नजर आ रहे हैं? बीमारी, ये क्या थी? बीमारी। अब उस बीमारी का इलाज अगर वही अच्छी होती है ना कि जहां से बीमारी की तशख़ीस की की जाए और फिर उसकी दवाई भी तजवीज़ की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ से मुफ्त दवाई मिलती है, ये फ्री डिस्पेंसरी है, पैसे भी नहीं लगते। बात में दवाई मुफ्त ले जाओ, सिर्फ इस्तेमाल करना तुम्हारा काम है, अल्लाह की रहमत से शिफा मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अगर हमारा मुर्दा हो चुका, स्याह हो चुका, गुनाहों की बुराई हो जाए, कदूरत के पर्दे चढ़ चुके, इसकी दवाई ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना पूछे जो तबीब अव्वल है। क्यों भाई? रूहानी तबीब अव्वल तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। हम तो सारे के सारे बामानित्ता बानी हैं, अला तस्वीरत आना बामानित्ता बानी। हम तो वारिस हैं ना, अल उलमा वरसतुल अंबिया, हम तो वारिस हैं ना। तबीब अव्वल तो महबूब है, महबूब से ना पूछेंगे महबूब इस बीमारी का हमें इलाज बताइए। हमारा दिल गुनाहों की मैल कुचैल से हो चुका, दिल की आंखें हमारी अंधी हो चुकी, दीद बसीरत हमारी खत्म हो चुकी, इस बीमारी का, इस मर्ज का हमें इलाज बताइए। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हमें इलाज बताया। क्या फरमाया? लिकुल्लि शैइन शुफ़ाअतुन वशुफ़ाअतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर शय की मैल कुचैल धुलाई सफाई के लिए अल्लाह ने कोई ना कोई चीज पैदा की है। कपड़े को मैल लग जाए साबुन बना दिया, लोहे को मैल लग जाए रेख मैल बना दी, सोने चांदी को मैल लग जाए तेजाब बना दिया। और अगर तेरे दिल को गुनाहों की मैल कुचैल लग गई और ये मुर्दा हो चुका, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका, तो इसकी धुलाई सफाई का सामान अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह की याद के साथ दिल को तू आबाद कर ले। महबूब का वादा है, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व नज़लत बिहिमुस सकीना। इस वक्त तू मेरी याद के साथ दिल को आबाद करने बैठेगा, मेरी रहमत के फरिश्ते आकर तुझे घेर लेंगे, मेरी रहमत सकीना की बारिश तेरे ऊपर बरसने लगेगी। जब रहमत सकीना की बारिश बरसेगी तो जितने सालों के मैल कुचैल कदूरत ने तेरे दिल को स्याह क्यों नहीं किया हुआ, रहमत सकीना का ऐसा रहमत वाला पानी है जो इसकी धुलाई सफाई शुरू कर। और थोड़ी सी मेहनत के बाद ये तेरा दिल साफ शफाफ और मुनव्वर हो जाएगा। जब दिल वाला आईना, ये धुंधला शीशा साफ हो गया ना, सबसे पहले तो तुझे अपनी हकीकत नजर आएगी कि मैं क्या हूं। हमारा ये हाल है, खुद को तो जुनैद बगदादी हमने समझ लिया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी मैं हूँ, जुनैद बगदादी भी मैं हूँ, मोमिन मैं हूँ, मुवाहिद मैं हूँ, दाई मैं हूँ, मुबल्लिग मैं हूँ,
आशिक रसूल में हूँ, सब कुछ मैं हूँ, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा। ये खुद को क्यों जुनैद बगदादी समझ रखा कि दिल का आईना धुंधला है, अपनी हकीकत नजर नहीं आती, इसलिए खुद को जुनैद बगदादी समझ रखा और लोगों को पता नहीं क्या कुछ नहीं। सबसे पहला फायदा ये होगा जब रहमत सकीना का नूर बरसेगा, ये दिल की धुलाई सफाई होगी, दिल का आईना साफ होगा, अपने हकीकत नजर आएगी, फिर पता चलेगा कि दुनिया में मेरे से बुरा कोई है ही नहीं, सबसे बुरा तो मैं। और जब आईना साफ हो गया, अब अल्लाह का जिक्र करेगा, अब रहमत सकीना का नूर आएगा, तेरे दिल को मुनव्वर करेगा। अब ये आंखें मुनव्वर होंगी, बसीरत वाली आंखें, इनमें नूर आएगा, ये मुनव्वर होंगी, ये वहां तक देखना शुरू कर देगी जहां तक तेरी दूर भी नहीं पहुंच सकती। तेरे दिल के कान खुल जाएंगे, ये वहां की बातें सुनना शुरू कर देंगे जहां तेरी बहले से नहीं सुन सकते। इसकी जुबान बोलने लग जाएगी, इसकी जुबान बोलने लग जाएगी, ये बैठे बैठे चुप बातें कर लेगी। उसने फौरन एक बम डाला, तुम्हें तो नहीं पता, मुझे काम में कुछ कार्य उसने फौरन हमला करेगा। कहते यार ठीक की बातें तो बड़ी अच्छी हैं, पर इतने मकाम वाले लोग आजकल कहाँ, ये तो सारे दुकानदारी हैं, ढोंग रजा रखा है, कोई यहाँ ढोंग रजा है बेटा, कोई वहाँ ढोंग रजा बेटा, ये लोग बड़ा मिलते कहाँ है जिनके पास ये ढोंग रजा, ये बड़ा भारी बम है, इसी बम ने तबाही की हुई है। खुदा की कसम इस दौर में है, मान ले मेरी बात, बड़े रसूल पे बैठ के कह रहा हूँ कि हैं, इस दौलत वाले लोग हैं, तेरी दीन में पहचान नहीं है, उसको तेरा है, अपनी दीन में पहचान पैदा कर। तुम बात तुझे सुनाओ, शादी की बात सुनाओ, ये मिस्कीन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आकाई मुर्शिद सैयद करीम से माँ बाप को फरमाया करते थे, तालीम और तरबियत अपने हाथों से तमाम मुकाबले की खिदमत ले जाते रहे, ये मेरा बेटा है, खिदमत के लिए से कबूल करो। पूरी जमात हजरत ने मुझे बड़ा बेटा समझती है, मैं उनका खादिम गुलाम, बड़े बेटे भाई मोहम्मद शाह साहब, ये उनकी नजर इनायत थी कि उन्होंने मुझे बड़ा बेटा बनाकर अपने जोजो में रखा। बचपन से वालिदैन से मांग कर ले आए थे, ये मुझे दो, तो मुझे अजीब दास्तान का भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, जिंदगी रही तो। मुफ्ती रशीद अहमद साहब जो ध्यानी दाऊद बर्बाद की खिदमत में बिंदौरी टाउन से दौरा हदीस शरीफ फरागत के बाद मुफ्ती का कोर्स करने के लिए ले गए और खुद फरमाया कि ये मेरा बड़ा बेटा है, इसी खिदमत के लिए इस्लाम के लिए ले आया, मुझे कबूल करना है, आपके जोड़े सीधे करने का एक अरसे तक शर्त। कोर्स हमारा खत्म हुआ, हजरत कराची तशरीफ ले आए, मुझे फरमाया भाई बड़े बड़े अकादमी में जुज्जत तुमने सीधी कर ली, अब चल मिस्किन को शरीफ वहाँ तकलीफ भी जुज्जत सीधी कर, काम वहाँ पड़ेगा। अभी जो हुक्म है मैं खादिम हूँ, वहाँ कराची में अल्हम्दुलिल्लाह रांगीवाड़ा में रहते थे, बहुत बड़ी जमात बनी हुई थी, अंजुमन हमने बनाई, बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हो रहा था, तो मैं सब कुछ चलो मिस्किन को शरीफ तकलीफों में जुज्जत सीधी कर, सौदा वहाँ बनेगा। मैं हजरत मुफ्ती साहब से रब्ता करो, जैसे मैं खुद उनकी खिदमत में पेश करके आया था, उनसे छुट्टी भी मैं खुद जाकर लूँगा, इजाजत खुद जाकर लूँगा। अच्छी बात है, रमजान शरीफ का महीना था, हजरत उम्रे की नियत से तशरीफ लाए थे, लेकिन कराची का इज्तिमा जो शाबान के चौथे जो हमारा इज्तिमा फेडरल एरिया में होता है, इसके इफ्तिताह करना था, तो प्रोग्राम ऐसा बन गया कि आप उम्रे पे जा सकते थे या इज्तिमा का इफ्तिताह कर सकते थे। तो हजरत ने इज्तिमाई तकाजे के लिए अपना उम्रा कुर्बान कर दिया था, उम्रे का प्रोग्राम छोड़ दिया था और इज्तिमा के आगाज करने के लिए प्रोग्राम बना दिया। तो मुझे फरमाया कि हजरत से अर्ज करो कि कोई टाइम ऐसा इनायत फरमाएं जिसमें मैं हाजिर होकर तुम्हारी इजाजत हूँ। दिन के वक्त मैंने रब्ता किया, वो वाले 29-28 का दिन, 29 की रात में हमारे नीचे आने के, एक तो दोपहर को 11:30 से 12 बजे तक मुफ्ती साहबान की तालीम के लिए नीचे आते हैं, दूसरा टाइम है कि रात को मोटर के 20 हज़रात के साथ 10 बजे के बाद तो औकात में जिस वक्त हजरत आ जाए तो मुलाकात हो जाएगी। हजरत का कीमती है, पूरे टाइम टेबल के मुताबिक होता है। हजरत दिन में आज की तो हमें फरमाया ठीक है, रात 10 बजे वाला टाइम जो है ना वो तय कर लो, उस 10 बजे वाले वक्त में फुर्सत होगी उसमें चले। हजरत को मैंने कहा कि हजरत रात 10 बजे हम इंशाल्लाह हाजिर हैं। इत्तेफाक के बाद के रात को ईद का चांद नजर आ गया, रमजान शरीफ छुट्टी हो गया, सुबह को ईद हो गई। हम फेडरल एरिया में नूर साहब के मकान पे बैठे हैं, मगरिब की नमाज पढ़ी, खाना खाया और इशा की नमाज पढ़ी,
10 बजे के इंतजार में बैठे थे, 9:30 हुए तो मैंने अर्ज किया कि हजरत रश बहुत बैठ रहा होगा, जल्दी चले ताकि 10 बजे हम पहुँच जाए, हजरत इंतजार कर रहे होंगे। सही साहब से वो गाड़ी बाहर निकाले और चले। मैंने जरा बताया सही साहब ने कभी गाड़ी सब बात हो गई। सही साहब गाड़ी लेके आ गए, आओ जी जल्दी आओ, गाड़ी तैयार है। हजरत मुराद में बैठे हैं, मैं इधर से खास उधर से पहुँचता हूँ, आऊँ करता हूँ कि हजरत साहब उठाए तो उनसे कहूँ कि हजरत गाड़ी बाहर खड़ी है। हजरत मुराद में बैठे हैं, बड़ा मैंने शोर मचाने की कोशिश की कि कहीं तरीके से सर उठाए, हजरत किसी आवाज पर सर उठाए और मैं आज करूँगी हजरत लेट हो रही, गाड़ी बाहर खड़ी है, चले देर हो जाएगी, 5 मिनट भी ऊपर नीचे हो गए तो हजरत की मुलाकात नहीं होगी। हजरत मुराद में बैठे, मेरी कोई खास में किसी की तरफ नहीं दे रहे। 5 मिनट बाकी बच रहे थे 10 बजने में, मैं परेशान हो गया, मैंने बहुत बड़ा मसला बना। हजरत इंतजार कर रहे होंगे और ये सामने उठा रहे मुराद से, आज का प्रोग्राम ऐसे ही है। हजरत ने सर उठा, मैंने कहा जी गाड़ी में मेरा इंतजार करिए, मेहरबानी करें तस्लीम ले चले। हजरत इंतजार में हुए, आप चले जाएं, मेरा कुछ जाने बस तो मुलाकात तो आपकी थी, प्रोग्राम आपको बनाया हुआ था, वो इतना बड़ी शख्सियत में इंतजार कर रहे होंगे, आप मेहरबानी करें चलें। नहीं बेटा मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा, आप चले जाए, हो क्या जाए, मैं फिर किसी वक्त नहीं लूँगा। मैं समझ गया, मैंने कहा ये और ऐसे नहीं काटे जा रही, खास नहीं बता रहा। सही साहब लगा, मैंने जल्दी टेलीफोन का निकाला, टेलीफोन लेके आया, मैंने दाद लिफ्ता का नंबर घुमाया, तो नीचे मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब बैठे। मैंने कहा यार हजरत आपका इंतजार करें, हजरत से बात करो। मैंने कहा ये बात छोड़, ये मतलब हमने मुलाकात के लिए आना था, हजरत मुलाकात के मूड में है कि नहीं है? अरे यार ये बातें छोड़, हजरत ने कई मतलब मुझे कहा कि मिस्कीन का फोन आए तो मुझे बताना। जल्दी नीचे से बैल बजा दी, हजरत के ऊपर से फोन उठा रहे मिस्कीन मैंने कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बड़े लफ्ज़ों से हजरत सलाम फरमाते हैं। अच्छा भाई वो बात है, कहाँ बैठे तुम लोग? मैंने कहा हजरत हम ट्विटर पे बैठे। हाँ भाई वो बात ये है कि जो हजरत ने मुलाकात के लिए आना था ना, तो आज तो था और तबीयत भी कुछ ऐसी है, तो आपकी बजाय किसी और वक्त हजरत तशरीफ लाए तो बेहतर होगा। और दूसरी बात जो तुमने कही थी कि मुलाकात के वक्त मुझे कुछ हिदायत बताना, वो कैसे में महफूज करूँगा, तो वो 15 शवाल को जब मैं मुफ्ती साहबान का हम दाखिला देंगे ना, तो उनको हम हिदायत देंगे, वो कैसे में महफूज करके तुम्हारे पास भेज देंगे। बाकी मुलाकात का मसला जो है वो इस वक्त तो आपको तकलीफ होगी, तो फिर किसी वक्त करें। अच्छा मैंने फोन कर दिया, तो मैंने कहा भाई ये कहाँ से बैल बजी थी, मैंने तो नहीं सुनी, थोड़ा बैठा बात करता हूँ। नहीं भाई बताओ। उधर से इरादा खत्म हुआ, इधर पहले बैल बज गई, ये बातें कैसे कर ली तुमने बैठे बैठे? वो भी प्रोग्राम के इंतजार में, हम भी गाड़ी लेकर प्रोग्राम के इंतजार में बैठे हैं, ये कैसे टेलीफोन आ गया था? मैंने तो कहती इसमें कहाँ टेलीफोन आ गया था? जी ये दिल की जुबान तो बातें कर लेते हैं बस, और इस दौर की बातें हैं, दूर की बातें नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे बैठे इतना बड़ी दूर बातें कर लेती है, जहाँ तेरा टेलीफोन भी नहीं पहुँचता, वहाँ बातें हो जाती हैं। हमारे हजरत फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह मिस्कीन मस्जिद बस्ते में बैठे, अपने एक फकीर से फरमाया कि हमारे खानदरा के करीब है मड राजा का इलाका, वहाँ खजूरें बड़ी होती हैं। फकीर से फरमाया यार फलाने हाजी साहब को खत लिखो, बड़ी मुद्दत हो गई मिलने के लिए नहीं आए, लंगर के लिए खजूरें भी लेते आए और कल लंगर में आ जाए और मुलाकात भी हो जाए, उससे खजूरें भी लेते आए। जहाँ बेतकल्लुफ़ की मोहब्बत की जगह हो ना, वहाँ फरमाइश करना भी कोई याद नहीं, लेकिन ऐसी जगह फरमाइश करना जहाँ वहाँ हराम है। जहाँ फरमाइश करने से दिल बाग बाग हो जाए, वहाँ महबूब भी फरमाइश कर दिया करते हैं, जगह जगह होती है। उस फकीर ने कहा अच्छा हजरत लिखूंगा खत में, रात हो गई इशा के वक्त, फकीर ने कहा अच्छा रात को जब सुबह लेके रवाना कर दूंगा। उस हाजी साहब की अहलिया मोहतरमा जाकिरा शागिला थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीवी जिक्र फिक्र करती है माशाल्लाह। सुबह उठी बच्चे को दौड़ लगाए, 2-4 गालियां बच्चे को, 2-4 बर्तन को, 2-4 मियाँ जी को, 2-4 उसको जी अताउल्लाह मलंग की कैसे में लगाई, तेल का बटन दबाया, छनकारें शुरू हो गई और डांस भी कर रही है, घर का काम भी कर रही है। हमारी बेग माँ भी माशाल्लाह बड़ी, लेकिन वो अल्लाह वाली भी थी जो अल्लाह वालों की दूध में बैठ कर अल्लाह अल्लाह सीखती थी। उस हाजी साहब की अहलिया मोहतरमा जो थी बहुत जागरा शागिला थी, वो खत लिखना गुफलत कर रहे थे, सुबह को खत लिखूंगा। इशा के बाद जो मुराकबे में बैठी, तो मुराकबे में बैठे हुए हजरत का खत पढ़ रही है।
حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فرما رہے ہیں کہ لنگر کے لیے کھجوریں لے کر کل لنگر میں آ جاؤ, ملاقات ہو جائے. حاجی صاحب 4 بجے بیٹھے. ارے یہ کیا ہو رہا؟ یہ مراقبہ کر رہی ہے, خط پڑھ کے سنا رہی ہے جی. خطبے کے دوران باتیں ہو رہی ہیں, مراقبے کے دوران خط پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. ابھی وہ لکھا نہیں, خط کل کی تیاری ہو رہی. عبارت پہلے سنائی جا رہی ہے. حاجی صاحب صبح کو اٹھے, ایک بہت بڑی کنجیر کھجور بھی بھری اور پیدل چل دی حضرت کی خدمت میں. شام کو پہنچے, ارے حاجی صاحب تم آ گئے, خط پہنچ گیا تھا. خط تو نہیں پہنچا, فقیر جی نے رات خط پڑھ کے مجھے سنا دیا. ارے نہیں تجھے کہا تھا خط لکھ, کہ حضرت مجھ سے غفلت ہو گئی, میں نے کہا کل خط لکھوں گا. خط پہنچ گیا وہاں. یہ دل کی زبان ہے جو باتیں کرتے ہیں. کاش کہ اللہ تیرے دل کی زبان کو بھی کھول دے, تیرے دل کی آنکھوں کو کھول دے, تیرے دل کے کانوں کو بھی اللہ کھول دے. میرے بھائی بات یہی چل رہی تھی کہ تجھے مجھے اس لیے جلوے نظر نہیں آتے کہ دین جو سرے سے کوری ہو چکی ہے. اس کا علاج تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر شے کی دھلائی صفائی کا سامان اللہ نے بنایا, اور تیرے دل کی دھلائی صفائی کا سامان اللہ کا ذکر ہے. اور اس ذکر کو سیکھنے کے لیے, اس کی تعلیم دینے کے لیے یہاں بلایا جاتا ہے, لنگر کی دال کھلانے کے لیے نہیں. بس لیکن افسوس ہے, افسوس ہاسپٹل میں آ کر بھی لوگ سو جاتے ہیں. حضرت ابھی مجھے یہ قلعہ سنا رہے تھے کہ عشاء کے بعد کے بیان اس لیے ہم نے بند کیے کہ ہمارے فقیر لنگر کی دال کھاتے خراٹے بنانے شروع کر دیتے. ہم نے تو فقیروں کے خراٹوں سے تنگ آ آگے لیاقت پور کے اجتماع میں بھی, مسکین پور شریف میں بھی ٹائم ٹیبل کوئی ایسا بنایا کہ دال پہلے دیں گے ہی نہیں, کہ دال اندر پیدا ہو کے کمال پیدا کر دیتی ہے, فقیر خراٹے پانے شروع کر دیتے ہیں. زور سے جو ہی مجلس شروع ہوئی رات کے 10 بجے تک چلی گئی. نماز سے فارغ ہو کر پھر دال دیں گے, پھر خراٹے مارو گے. مزے کی بات یہ ہے ہاسپٹل میں بھی آ کر علاج کرانے کی بجائے فقیر خراٹے مار کر سو جاتے ہیں. ارے سال کے بعد تم نے ایک رات کا تو وقت نکالا علاج کرانے کے لیے, اور ڈاکٹر بیٹھے علاج کے لیے تو خراٹے مار رہا. بھائی فکر کرنا چاہیے, یہ وقت قیمتی ہے, یہاں آ کر اپنا علاج کرانا چاہیے. اور الحمدللہ یہ کال کے ساتھ نسخے بتلائے جاتے ہیں, اور ہال کے ساتھ انجیکشن لگائے جاتے ہیں, ڈرپ میں لگائی جاتی ہے. ڈرپ میں یہ مراقبہ جو ہوتا ہے نا, ابھی مغرب کے بعد ڈرپ میں لگ رہی تھی. ڈرپ میں کسی کو بلڈ کی, کسی کو گلوکوز کی, کسی کو کیسی کیسی, جیسا کوئی مریض تھا نا اس کے لیے ویسی ہی ڈرپ میں لگ رہی تھی, اور بعض کے لیے انجیکشن. جی یہ ایسے حاذق حکیم ہوتے ہیں کہ یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے نہیں, اے سی جی کے ذریعے نہیں, یہ سپورٹ کے ذریعے نہیں, یہ دید بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سی مرض ہے, اس مرض کو کون سا انجیکشن لگے گا, کون سی ڈرپ کارگر ہوگی, کون سی جی اس کو سیرم دینی پڑے گی, کون سی ٹیبلٹ کیپسول چلے گا, اس کے مطابق دوائی تجویز ہوتی ہے. آپ لوگ خوش وقت ہیں کہ اس ہاسپٹل میں آ گئے, روحانی اطباء کی آپ کو شفقت نصیب ہو گئی. مہربانی کریں, پوری توجہ کے ساتھ اپنے دلوں کو متوجہ کر کے رکھیں, اور جہاں سے اپنے علاج کرا کے جائیں. خراٹے گھر جا کر مار لینا, سونے کے لیے بہت وقت پڑا ہے. خراٹے وہاں مار لینا جہاں بیدار ہو کے رہو. دل کی بھی آنکھیں کھول کے رکھو, سر کی بھی آنکھیں کھول کے رکھو, دل کے بھی کان کھول کر رکھو, سر کے بھی کان کھول کر رکھو. جو کچھ نسخے ملے ان کو محفوظ کرو, اور گھر جا کر ایک بار عمل کرنا. میرے بھائی الحمدللہ یہاں ہمارا ان روحانی امراض کا علاج ہوتا ہے. اس علاج کے ساتھ جب تیرے دل کی دھلائی صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ, یہ دید بصیرت روشن ہو جائے گی, جی پھر ایک وقت آئے گا سبحان اللہ کہ محبوب کی طرح اپنا قرب عطا فرما دیں گے. اسی کو خود بندے سے پوچھے بتا رضا کیا, یہ مقام کسی طریقت والے راستے سے چل کر ملے گا. یہ اعزاز اسی تصوف کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد ملے گا. اور کبھی دشمن کا انجیکشن نہ کھانا, کسی بمبار کی بمباری کا شکار نہ ہونا کہ یہ من گھڑت سوتے ہیں. الحمدللہ قرآن اور حدیث سے سب کچھ ثابت.
ہمارے قابلین کا کوئی عمل بھی قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے. اور اگر تجھے یہ بیماری کا وہاں اگر آرام نہ ہو نا، یہاں 2-4 دن داخلہ لے کے 2-4 دن ہاسپٹل میں داخلہ لے کے رہ جا. انشاءاللہ وقت پہ ذرا ٹمپریچر چیک ہوگا، بی پی بھی ذرا چیک ہوگا، اور وقت پہ انشاءاللہ انجیکشن بھی لگیں گے، کیپسول بھی ملیں گے، ٹیبلٹ بھی ملیں گے، اور ضرورت پڑی تو ڈرپیں بھی لگیں گی. انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گی. اور اگر اور کوئی مریض بھی ملے نا، یہ پڑیا یہاں سے جو لے کے جا رہا ہے، اس طرح پڑیا کھلانے سے اس کو آرام نہ ہو، اس کو بھی لے آنا. الحمدللہ یہاں سے ایسا علاج ہوگا کہ ساری بیماری سے شفا مل جائے گی. بس میرے بھائی، اسی دولت سے ہمارے سینوں کو مرمر کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی جائے، یہ سالانہ اجتماع منعقد کیے جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں گھر سے بلایا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ گھڑی اس کو بیکار اور فضول نہ سمجھنا. ایک روایت میں پڑھا اور اللہ والوں سے سنا بھی صحیح کہ اللہ والوں کی صحبت میں آ جانا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں. جس اپنے بندے کی طرف محبوب حقیقی 70,000 مرتبہ رحمت کی نظر کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اس کو اپنے پیاروں کے در میں آنے کی توفیق دیتے ہیں. یہ تیرا میرا کمال نہیں، اس کا فضل و کرم کہ 70,000 مرتبہ رحمت کی نظر کے ساتھ جس اپنے بندے کی طرف اللہ توجہ فرماتے ہیں، اس کو اپنے پیاروں سے جوڑ دیتے ہیں اور ان کے قدموں میں آنے کی توفیق دیتے ہیں. اس نعمت کا شکر ادا. اور اتنا نعمت ملنے کے بعد پھر تو خراٹے مارتا رہے، یہ افسوس کی بات. یہاں آ کر اپنے امراض بتا، جی اگر بتانے کا موقع نہ ملے تو مستحضر رکھ، اور یہاں سے ہر مرض کا نسخہ بتلایا جاتا ہے. اس کے نسخے کو محفوظ کر اور گھر میں جا کر اس پر عمل کر. دیکھ شفا ملتی ہے کہ نہیں ملتی، دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا تعلق نصیب فرمائے، ان کے جوتوں میں جگہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ. جلدی نماز پڑھ کے بیٹھتے لوگ چھٹی دے دو، نیند یہاں کر لیں. اگر خراٹے مارنے کا شوق ہے تو خوب خراٹے مار لیں، لیکن یہ بیکار درمیان میں حارج ہو گیا. آپ حضرات کو معاف کریں کہ حضرت کو معاف کر دیں گے. الحمدللہ یہ بڑی قیمتی گھڑیاں بنی ہیں، شاید زندگی میں دوبارہ ایسی گھڑیاں نصیب ہوں. دعا ہے رضا معاملات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی رضا و خوشنودی کا فرمانا نصیب فرمائے، اپنی محبت و معرفت کا نور نصیب فرمائے، اپنے پیاروں کی جوتوں میں جگہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.